Morning. Good morning, students. Welcome back to the online sessions of class 9 science. I hope you and family will be fine in this pandemic situation. I requested to you just avoid to go into the crowded places. Also avoid to go unnecessarily outside your homes. Use the protective face mask, take sanitizers, always wash your hands within 20 seconds in the part of regular time interval. Stay home, stay safe. Now let me discussing about the today's topic. What we have to be studied today on the part of the gravitation, which are written on the wall, that is part of the pressure. Relationship about the pressure which have to be applied as a part of area. Buoyancy force, buoyant force is what, density is what, as well as we have to perform a simple experiment to implement the buoyancies. Whatever we discussing into your previous class about the gravitations, what is called universal gravitations क्या है, how we obtain the uniform acceleration motion as a part of free falling, as a part of retarded motion, mass or weight क्या है, these are the topics that we are discussing in the part of gravitations. But today first we are discussing about the pressure. Pressure किसको कहते हैं? Generally in your daily life you have to aware of the word of pressure. Pressure के word से बहुत ज़्यादा awareness होंगे. When you are in a school, there is a lots of pressure to be getting the good marks in the subject, getting the good rank, getting a good percentage, always be trying to be better into the class, always be having the hard work. So lots of pressure. Family pressure is there, teachers pressure is there, parents always pressure, competition pressure is there. So different kind of as a terms of pressure you can be assumed. But as a part of the physics, what is the actual definition of pressure? How we can be saying what is called the pressure? The force acts per unit area. The force acts per unit area, it is a direction of perpendicular to the area is called as a pressure in the terms of the surface. Okay, so एक specific surface पे कितना unit of areas implementation हो रहा है part of force का, उसको हम क्या कहते हैं, pressure कहते हैं. So the force is always perpendicular to the particular surface. So how much amount of force that is applied into the specific unit of area is always be perpendicular to the surface is called as a pressure. इसको आप क्या कहेंगे, pressure कहेंगे. तो pressure is generally force upon area. Simple terms में अगर आप उसको calculations करते हैं तो pressure को आप P से generate करते हैं. Pressure P is equal to force F upon area A. So P is equal to F upon A. So how much amount of force is generally related to the amount of areas is generally considered as a pressure. उसका pressure से consider करते हैं. So it can be seen according to the equation P is equal to F upon A. P is inversely proportional to its area. P is equal to F upon A का मतलब क्या? A जो डिनोमिनेटर में है, A is generally called as inversely proportional to its force. Force के inversely proportional में है. So it means कि अगर आप reduce करते हैं area को तो pressure always will increase. If you reduce the area, pressure always will increase, and if you increase the area, pressure always will reduce. So जितना ज़्यादा आप एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे प्रेशर उतना आपका डिक्रीज होता जाएगा, और जितना ज़्यादा आप एरिया को डिक्रीज करते जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर जो उसका मेजर किया था फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के अंदर. फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है, सॉरी प्रेशर का, वो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है. या तो इसका दूसरा जो ऐसा यूनिट है जो साइंटिस्ट पास्कल थे, पास्कल के नेम पे इसका दूसरा जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का पास्कल से भी जनरेट करते हैं. वहीं तो मैंने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड प्रेशर अप्लाइड. उसका रिलेशन क्या है? So the force that act per unit area is always be perpendicular into the area as a part of the surface is called as a pressure. उसको आप क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. The equation of pressure P is equal to F upon A, force upon area. So pressure is always be inversely to area. ये तो हमें पता चल गया. तो जितना ज़्यादा प्रेशर को इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे यानी एरिया बढ़ाते जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, एरिया घटाते जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाएगा. So एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इन नाइफ या फिर आप देखते हैं एक्स या नेल एटसेट्रा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं. इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर द एरिया ऑफ देयर एजेस आर वेरी स्मॉल. या वो नेल हो, नाइफ हो, एक्स हो, उसका जो एरिया ऑफ एजेस होते हैं, द एरिया ऑफ एजेस आर वेरी स्मॉल. सो दे अप्लाई अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्मॉल फोर्स, द मोर प्रेशर देयर कैन बी प्रोड्यूस. तो स्मॉल फोर्स से क्या होता है, ज्यादा प्रेशर जो है प्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो प्रेशर क्या करेगा, प्रोड्यूस ज्यादा करेगा. सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जैसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर आप देखिए तो उसका डैम्प जो होता है, डाउन साइड डैम्प, उसको काफी ब्रॉडर रखा जाता है. क्यों ब्रॉडर रखा जाता है? जितना एरिया को आप इंक्रीज करते जाएंगे प्रेशर जो होगा ऑलवेज भी डिक्रीज होता जाएगा. तो दैट इज जनरली अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है. या फिर आपको परफॉर्म करना है, जैसे सर्कस के अंदर आप देखते हो, सर्कस के अंदर जो वहाँ पे एक्टिव करते हैं, जो अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं कि
तो वो क्या करते हैं कि अपने चेस्ट पे से कभी बाइसिकल को रोटेट करते हैं, व्हीकल रोटेट करते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आपने देखा होगा। सो टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी दे जनरली रिड्यूस द प्रेशर, वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा वुडन का जो बॉड होता है वो अपने चेस्ट पे रखते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर जनरेटेड होता है, फोर्स, वो डिवाइडेड होता है एज अ पार्ट ऑफ एरिया में, जिसकी वजह से उनको कम फोर्स जो है प्रेशर वहां पे फील होता है। सो दैट इज जनरली रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑफ एरिया एंड प्रेशर। Now, the next topic that is called as the buoyancy and the buoyant force. देखो buoyancy जो है एक जनरली एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो लिक्विड के अंदर देखने को मिलती है, जो एक्वाटिक्स मीडियम है, लिक्विड मीडियम से होता है, उसमें प्रॉपर्टी ज्यादा देखने को मिलती है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज जनरली अ सब्सटेंस टू पुश द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन। When you immerse any object partially or completely into the water, it generally provides the specific force and the object which is comes into the upward direction. So that is called as a buoyancy. इसको आप क्या कहते हैं? Buoyancy कहते हैं, इस इफेक्ट को buoyancy कहते हैं। So when the object that is soluble into the partially or completely immersed into the liquid, then it should be provided that the water, the force that acts on the particular object, it's from downward to upward direction it can becomes. So this type of force we generally provide from the downward directions of water, that is called as the buoyant force. So as a result, इसके वजह से क्या होता है कि the result of net force, आप देखेंगे तो upward से down directions के अंदर ऑब्जेक्ट को जैसे आप इमर्स करते हो तो फोर्स दैट शुड बी मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर से नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स ऑफ डाउन कहते हैं। द फोर्स दैट कैन बी डाउनवर्ड साइड, नीचे से buoyancy फोर्स लगेगा फ्रॉम अपवर्ड। इसके वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक नेट फोर्स जनरेट होगा, एफ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट दैट शुड बी फील स्लाइट लाइटर, जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा ना उससे थोड़ा सा वो हल्का फील करता है, जो नीचे से भी फोर्स लग रहा है ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है स्लाइटली अपर डायरेक्शन में आता है, जिसको लाइटर ऑब्जेक्ट कहते हैं, व्हिच हैविंग अ पार्ट ऑफ द बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स का एक सिंपल अगर डेफिनेशन समझेंगे, सिंपल डेफिनेशन में आप उसको क्या कह सकते हैं, द नेट फोर्स या द नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी that generally having to be partially or completely immersed in a part of the liquid substance is known as the buoyant force. Okay, so जो net buoyant force जो होता है, जो partially object immersed होता है, उसके जो weights होते हैं उसके implementation करता है। इसको सबसे पहले जो आर्किमिड्स थे उन्होंने एक specific form of principles के अंदर इनको implementation किया था। So when for calculating of that buoyant force, Archimedes saw that when an object that is generally partially or completely that is immersed into the liquid water, the buoyant force acts onto the particular object is generally implement onto the object which make it very lighter। ये प्रिंसिपल जो था वो आर्किमिड्स ने इम्प्लीमेंटेशन किया था। चलो इसको शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट समझते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि बियॉन्ड फोर्स का एक्सपेरिमेंट कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेशन। तो बियॉन्ड फोर्स के फॉर्म में अगर समझे तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी अगर परफॉर्म करना है तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि टू स्टडी ऑफ बॉइंट फोर्स। चलो एक एम लेते हैं कि हमें बॉइंट फोर्स स्टडी करना है। उसके लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, वी नीड अ बीकर, वी नीड अ वाटर, वी ऑल्सो नीड अ रबर बैंड, इलास्टिक स्ट्रिंग एटसेट्रा वी हैव टू। अभी इसके लिए क्या प्रोसीजर करेंगे, सबसे पहले तो टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड दैट हैविंग टू बी पीस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। एक स्टोन लीजिए और एक इलास्टिक स्ट्रिंग लीजिए। अभी इलास्टिक स्ट्रिंग की एक एंड को स्टोन के साथ बांध दीजिए, ओके। फिर क्या कीजिए, दूसरा एक स्टोन लीजिए, उसको दूसरे इलास्टिक के स्ट्रिंग के साथ बांध दीजिए। अब दोनों को आप लेंथ को मेजर करिए, दोनों का लेंथ को मेजर कीजिए। अभी क्या करो, दो बीकर लो, एक बीकर के अंदर वाटर रखो, दूसरे के अंदर वाटर नहीं। फर्स्ट बीकर दैट शुड बी फुल विद द वाटर, अनदर बीकर विल जस्ट हैव टू हैव एम्प्टी वाटर। दोनों के अंदर क्या करें, वी हैव टू बी इमर्स दैट स्टोन। स्टोन जो है विद हैविंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिंग, उसके साथ जो आपने बांधा है उसका स्टोन उस लिक्विड इमर्स के अंदर उसको आप डिसॉल्व कीजिए। व्हेन यू डिसॉल्व दैट पर्टिकुलर स्टोन विद हैविंग अ लिक्विड फॉर्मेशन हैविंग अ स्ट्रिंग, इफ यू हैव सीन द पर्टिकुलर लेंथ, उसके लेंथ को ऑब्जर्व करिए। वन ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन इमर्स्ड कंप्लीटली इनटू द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द बीकर विद हैविंग द वाटर, अनदर बीकर डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ वाटर एंड वी हैव टू बी फाइंड द लेंथ। We have to find the length of measure. We can see that when the object which having into the partial completely immersed into water, its length is slightly reduced. उसकी length क्या होती है, reduce होती है, means it generally comes into the upward direction. So ये observation अगर आप देखते हैं तो पहले in the first case you have to be observed the stone was suspended and length of string that should be increases. When in the second case when you have to put out into the water, their strength or maybe their distance will be reduces। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है
इससे कंक्लूजन मिलता है कि however here the buoyant force which should be extended into the part of the object which having immersed into the liquid substances, the string will decrease when the stone was immersed into the water. The length of string that can be decreased when it should be immersed into the water while comparing it having into the outside of water. So moreover according to the Archimedes principle, Archimedes का जो principle उससे हमें पता चलता है कि when the object that is displaced into the water of the beaker, it having the equal weight, so as a result the buoyant force having to be beaker that should be rises upward direction and becomes very lighter. ये जो है प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने वहाँ पे प्रूव किया हुआ था, राइट. सो इससे ये पता चलता है कि buoyant force क्या है. सो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है, दैट इज अबाउट द डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द डेंसिटी. हम डेंसिटी किसको कहते हैं? बहुत तरह के वर्ड्स आप डेली लाइफ के अंदर इसके रिलेटेड सुनते हैं कि डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है. द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ दैट मास एंड वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी. द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी है. इसका ऐसा यूनिट अगर आप देखेंगे तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में मेजर किया था, क्यूब के अंदर मेजर किया जाता है. सो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डेंसिटी. डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी, क्योंकि सबके ऑब्जेक्ट के मासेस अलग अलग होंगे, सबके वॉल्यूम अलग अलग होंगे. सो डेंसिटी उसकी अलग अलग कंसीडर की जाएगी. द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जो स्केलर क्वांटिटी है उसका मेजर ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब. नेक्स्ट इज फॉर रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी क्या है? चलिए पहले तो एक एग्जांपल समझते हैं डेंसिटी का, फिर हम रिलेटिव डेंसिटी मूव करते हैं. जैसे डेंसिटी ऑफ गोल्ड. डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है 19.300 किलोग्राम मीटर क्यूब है. डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.300 किलोमीटर है, जबकि वाटर का 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब है. सो इट मीन्स दैट 1 cubic meter of space, that is 19,300 gram of gold or maybe 1000 kilogram of water can be accumulated. ये इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है डेंसिटी का. सो उससे डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का प्योरिटी क्या है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. व्हाट इज द एक्चुअल प्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो डेंसिटी से मेजर कर सकते हैं. दूसरा जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है. सो द रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? द पर्टिकुलर द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी के साथ आप कंपेयर करते हो, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ रिलेटिव डेंसिटी. आप उसको क्या कहोगे? रिलेटिव डेंसिटी कहोगे. तो ऑलवेज द रिलेटिव डेंसिटी इज कंपेयर टू द वाटर, हमेशा आप उसको वाटर के साथ कंपेयर करोगे. सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. इससे आप रिलेटिव डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. ये यूनिटलेस है. रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? इट इज अ यूनिटलेस सब्सटेंस. एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड चाहिए. इफ यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या है? 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब. दोनों का डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा? 19.3. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3. इट्स अ पार्ट ऑफ द टाइम्स ग्रेटर देन द वाटर. ये होता है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में. तो इससे क्या पता चलता है? ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के अंदर आप इमर्स करते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट नहीं करेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स होता है. सो इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1, द ऑब्जेक्ट इज सिंक इनटू द वाटर. ओके, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक कर जाएगा उसके अंदर. और अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 है, तो हमेशा फ्लोट करेगा. If the relative density of object is less than 1, it always be float onto the water, and the relative density of object is greater than 1, it always be sink into the water, right? So these are the topics that we discussing onto the today's lecture. So what we studied in the chapter of gravitation, first we discussing about the definition of the gravitational force, what is called gravitational force. उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या है,
उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल टू जी m1m2/r², उसको डिराइव किया था। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कैपिटल G कांस्टेंट ग्रेविटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो 6.67 × 10⁻11 का कंसिडरेशन में है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था दूसरा जो मास और वेट का जो कंपैरिजन था उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था स्मॉल जी ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कैसे डिफरेंशिएशन होती है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे उसकी वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के थ्रू का यूज करके फ्री फॉलिंग बॉडी जो डाउनवर्ड साइड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके फॉर्मूला को हमने कैसे डिराइव किया है। उसके साथ साथ प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया, प्रेशर क्या है। उसके बाद हमने प्रेशर और दूसरा जो है फोर्स उसके रिलेशन को समझा। और उसके बाद बॉयंट फोर्स क्या है, बॉयंट इफेक्ट क्या है, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, और ऑब्जेक्ट कब फ्लोट होगा, कब सिंक होगा। दीज आर द टॉपिक्स that we generally discussing on to the chapters number 10 gravitation. So I hope that this chapter is easily understandable by you. What are the topics that we're discussing into the three sections of part 1, 2 and 3 as a part of gravitation that can be easily understood by you. So students, I just requested you to just revise this type of topics which is available in your textbook. Also you have to use the different mediums of the online digital studies mediums by updating your knowledge as a part of gravitation, and just try to write the questions in your own words, how we can we derive the universal law of gravitation as the mathematical formula, how can we find the free falling acceleration object having the uniform acceleration motion, or maybe a downward direction or maybe upward direction, how we can be find the relative density and the density of the objects, right? So keep updating your knowledge by using the different digital mediums of learning. Only the standard part of the 10 of gravitation, only the topics that we have been discussing. Later on we'll discussing about the another chapter which is available in your syllabus as a part of NCERT. So once again, stay home, stay safe, keep updating your knowledge, and once again students, take care and bye.